Jani, Joint Secretary MCHR. Firstly, thank you all for making it today. I'm sure real estate as a subject is of interest to everybody. I think there is enough data points to show that 85% of India's savings is in real estate. So there is nobody who doesn't get impacted by real estate in our country. This is one industry that defines the growth of the country and of 200 other allied industries. So any impact to our industry actually is impacting everybody in India directly. Just to give you certain data points for you to understand the magnitude of where real estate is today, we are the second largest employer after agriculture in India. And we all know that the whole world today is talking about creating more jobs, making in their own country. We've been making in India before the word making in India came out. So for our good and for the growth of this country, real estate has to be the center of focus for everybody. In the last 2 years, real estate created 3 crore employment, new job creations only in Maharashtra alone. If you talk about Bombay, to the corporation that actually funds a lot of the infrastructure that we're all enjoying today, we contribute close to 5,000 crores every year. That comes from only the amounts we pay for all the development that we do. Having said that, all of us are fully aligned with the mission of our Prime Minister, Housing for All. Bombay has more than 50% of the population that lives in slums. The only way Bombay can develop is by redevelopment. There is no other way because land is not available. If you look at even all the development control regulations are all skewed towards redevelopment. The whole development control regulation of Bombay is the fulcrum is redevelopment. Every section today is based on redevelopment because that is the only way Bombay can develop. Sunny, and thank you all of you here. So as CREDA MCHR makes a statement that clearly the redevelopment is the way to go to provide housing for all. Even our Honorable Chief Minister has formed a special panel to promote redevelopment in our state. Now let's look at it. Since introduction of GST in 2017, the issues which have been cropped up under the GST regimes are very, very significant, and it has led to a viability of this entire redevelopment projects which the real estate developer actually carries on. So let's understand first what are the issues faced under the GST regime. A typical redevelopment project where the society gives the development right to a developer, and developer in turn then construct the entire building, effectively gives the area back to the existing members, tenants, and what is remaining thereafter, what we call it a free sale component, they sell in the open market. So the entire cost of redevelopment is subsumed in the free sale component which they sell to the customers. Now that free sale component which is sold to the customer effectively is liable to GST at 5%. So the first level of GST which comes up, that whenever that free sale component is sold to the customers, there is a 5% GST payable. No difficulty, because that's the transaction of supply of constructed flat to a new customer, and therefore they should pay GST at 5%. जो टॉपिक हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है एक बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का एक रीसेंट जजमेंट जो श्रीनिवासा रियलकॉन का है, जो डेवलपमेंट राइट से रिलेटेड है, जिसमें लैंड ओनर या सोसाइटी
एक डेवलपर को डेवलपमेंट राइट देती है। मुद्दा ये है कि जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है वो रिवर्स चार्ज पर है या फॉरवर्ड चार्ज पर है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि जब डेवलपर वो खुद एज अ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस डेवलपर वो जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है, उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। और फॉरवर्ड चार्ज है कि जो सर्विस दे रहा है वो ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है। तो ये पूरा जो मुद्दा है इस बेसिस पे निर्भर है कि जो लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट की है या गिवर की है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट मिस्टर रोहित जैन और हर्ष हैं ELP से, तो वो आपको इस पर थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए, जीएसटी इम्प्लीकेशंस एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब से जीएसटी आया है 2017 से, जीएसटी ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ट्रिपल इफेक्ट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल इट, जहाँ लग रहा है। एक तो सोसाइटी जब डेवलपमेंट राइट्स डेवलपर को देती है उस पे जीएसटी लग रहा है। जब सोसाइटी मेंबर्स को डेवलपर एरिया देता है उस पे जीएसटी लग रहा है। और जो डेवलपर पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पूरा सीमेंट, स्टील और लेबर एम्प्लॉय करता है, डिप्लॉय करता है, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। इसलिए ट्रिपल इफेक्ट हो गया है जीएसटी का। पूरी डेवलपर, पूरी रियल इस्टेट कम्युनिटी, MCHI, क्रेडाई, ये जो मुद्दा है ये जीएसटी काउंसिल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किए हैं। ये मुद्दा उनके सामने ऑलरेडी रखा गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। बट मीनवाइल ये असेसमेंट जीएसटी की चालू हो गई है, बिकॉज जीएसटी आके आज 7 से 8 साल हुए हैं और जीएसटी के असेसमेंट चालू हुई है। जीएसटी अथॉरिटीज़ जब असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं, डिमांड इशू कर रहे हैं, एंड बिल्डर, डेवलपर और द सोसाइटी मेंबर्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अभी भी डिसाइड नहीं किया है फाइनली। इसके लिए कोई डेवलपर ने ये मुद्दा हाई कोर्ट में लेके गए, एक रिट पिटीशन फाइल किया था। ये रिट पिटीशन बहुत सारी हाई कोर्ट बेंचेस में अभी भी पेंडिंग है, ये अभी भी डिसाइड हुआ नहीं है। एक रिट पिटीशन एक श्रीनिवासा रियलकॉन के केस में नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया। उन्होंने ये जब मुद्दा डिसाइड किया, उन्होंने एक ही मुद्दे पे डिसीजन दिया है कि इस पे रिवर्स चार्ज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और उन्होंने डिसीजन दिया कि रिवर्स चार्ज पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी तो लगेगा ही। आज जो लॉ है इसके हिसाब से डेवलपमेंट राइट्स पे भी जीएसटी लगेगा, और जो एरिया मेंबर्स को दिया जा रहा है उस पे भी 5% जीएसटी लगेगा। ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, एक तो बाकी हाई कोर्ट बेंचेस जब डिसाइड करेगी या जीएसटी काउंसिल उस पर कुछ अपना निर्णय देगी तो ही ये क्लियर होगा। तब तक जीएसटी लॉ के तहत इस पे जीएसटी लगता है और जीएसटी भरना पड़ेगा जब तक ये आगे की क्लैरिटी नहीं आती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि जीएसटी भरना पड़ेगा, तो एक डेवलपर के ऊपर भी एक प्रेशर आता है उस चीज़ का, तो व्हाट डू यू थिंक, वो जीएसटी क्या सोसाइटी मेंबर्स को पे करना चाहिए या फिर डेवलपर्स को ही बेयर करना चाहिए? कोई भी टैक्स लॉ में 2 कंसेप्ट्स रहते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो ट्रांजैक्शन हमें डिस्कस कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को टैक्स भरने की जिम्मेदारी डेवलपर पे आती है, आइदर अंडर रिवर्स चार्ज या जब यूनिट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हैंड ओवर करते हैं उस पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब ये होता है कि इवेंचुअली ये टैक्स का बर्डन जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर पास ऑन होते रहता है वन लेवल टू अनदर। अगर हम उस लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो सोसाइटी मेंबर्स को अल्टीमेटली जा रहा है, एंड आज का कानून ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को भी यूनिट मिलता है उस यूनिट पे भी मार्केट वैल्यू के दाम पे टैक्स भरना है, ना कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। उस लॉजिक के बेसिस पे जाएंगे एंड कंजम्पशन टैक्स, जीएसटी बीइंग एंड कंजम्पशन टैक्स, तो ये कॉस्ट टेक्निकली सोसाइटी मेंबर्स ने बेयर करना आना चाहिए।
बट हम ये पूरा मुद्दा समझते हैं कि इसमें सेंसिटिविटीज़ है, बॉम्बे जैसी प्लेस में इसका रेट्स काफ़ी हाई है। इसी के चलते हुए जीएसटी काउंसिल से क्रेडाई, MCHI थ्रू अस एंड अ लॉट ऑफ अदर पार्टनर्स हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकाला जाए। थैंक यू सर।